Hello and welcome to this video. In the previous video, I have explained about the introduction to AI and how the history behind AI and how AI came into being, and then how it is right now kind of ruling the both the IT industry as well as the other domains of most of the industries kind of now being run in with AI, right? So in this video, we'll be kind of discussing about what how AI is kind of running the business or running the different domains or different industry. That is the via its LLM models, right? So the companies like Anthropic, and Gemini, Google and OpenAI is kind of, and there are other companies like Twitter's Grok is there. Like they are having their own models, which are kind of trained in. Pre-trained data or through web scraping they have got, or through proprietary data they have got, and they train their models, and those models can understand human language, for example English or any other native language, and it can kind of understand it and predict the output of whatever you're asking, in the form of text, in the form of images, in the form of videos, in the form of so many other ways are there in which you can kind of give your input information. Okay, so I will share my screen and then we can start our discussion. Will not this video can become 1 second. So let me share my screen and then we can start discussion. Okay. 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 So how does the LLM works? So any model that you are kind of working on, how it works, like, so let me open ChatGPT and then let's consider ChatGPT as the model, and I'll kind of start a new chat. Okay. So now this is ChatGPT, right? Now, whenever I'm typing hi, let me bring this guy. Okay. So if I'm writing hi, how are you? Okay. Now I'm getting kind of giving an input to the model, right? So obviously the ChatGPT is just a form. It's just an interface. Basically, it uses GPT. I think it started from GPT-3, GPT 3.5, GPT-4, and GPT-5 is yet to come. But GPT kind of 3.5 is it started with. So basically, this is just an interface where you can type your input prompt, and then you are expecting an output. So when I click on enter, so the prompt input has happened, and then this is the output you are getting, right? That is what a LLM generally does. It takes an input and gives you an output. Now, if I open Cloud Code, okay. If I open Cloud Code, where is Cloud Code? Not Cloud Code. Let me open Cloud.ai, right? Or I can open Gemini itself, or Copilot is there, right? Let me open Gemini. I think it's not indexing properly. Okay, so this is the Gemini interface. Now I just type the same hi, how are you, right? So now Gemini uses its own models, like Gemini models are there, and this is the input that I've given. So I gave an input to the to ChatGPT. Hi, how are you? And this is the output I got. And okay, and this is the input I've given to Gemini. And this is the output you get, right? That is basic what a LLM takes. So this is a Gemini interface, but it uses, this is the Gemini interface provided by Google, but it uses its own models to kind of interact with the user like us, right? Now, so any LLM takes an input. Forget about the guardrails. There are so many different ways in which you can kind of change the input value. So let's not consider the guardrail for now. So this is the input that you are giving to an LLM, and the LLM kind of processes it because of its training methodologies. Because every LLM, when they are creating an LLM, large language model, they are basically training the LLM in
various ways, right? There it is different. I'll talk it later in the later videos, where there are different steps in how you can train an LLM better. Like both SLM, short language model, and language model and large language models, they are trained with data. Now the term large language model means they are trained with, heavily trained with a lot of different forms of data, and those are like data they acquire through web scraping. That means take the data from the websites like Quora or any website, they can do web scraping. That is one thing. And then secondly, they buy data from companies like Quora or Reddit or Pinterest or those companies. They can kind of sell the data. So because these companies, Google, OpenAI, and Microsoft, Twitter, these are very heavily funded or very rich companies, so they can kind of get and buy data from other companies, right? So they train their particular models heavily with the pre-trained data, as well as which means that whenever you are kind of entering a prompt, it understands based on this pre-trained data, it understands what you are trying to ask, and then it can predict the out. Okay, so that is how LLM is working basically. Okay, so we provide an input and then it gets an output, right? So prior to LLM, if you want to search something or if you want to do something using internet, what you used to do, we used to kind of go to Google and kind of type whatever we want to type. Like, similarly, I'll go over here and I will open google.com, or I can simply just type it. Let's open google.com, and what we were doing it here, we were doing that, hi, how are you? So basically I'll just type here, give me uh, the recipe to make biryani. Okay, just I will type. So what it does? So Google takes this input, okay, and it takes consider each as a keyword. Like biryani is a keyword, make is a keyword, recipe is a keyword. Okay, and based on this keyword, it indexes the website which has this, which measures their, which matches these particular keywords, indexes them, and then shows us the list of websites. Right? It is not transforming anything. Like GPT is generative, pre-trained transformer, right? Which means that it is generating something new. Okay, GPT. So basically, LLMs are nothing but transformers. Like generative means it creates a new output based on the input you give. So you give an input, but it predicts a new output. So that is the reason it is generative. But here Google search basically uses a search engine, inside, and it doesn't generate new output. It's basically through indexing, it gives us the result is the a group of websites through which we can go through and learn something, whatever our query we have passed. So we have passed the query, search engine indexes based on the keywords and gives the result of list of website which we can go through. Okay, now there was something called Google Translate was there. So Google Translate was also a kind of, so basically let me open Google Translate. uh, Google Translate, right? So Google Translate, what it used to do is that it will translate one of the input in any human readable, human spoken language, for example, English, and you can translate it to a different language, right? So it is also kind of generative new content. That is correct. It is generating new content, and it is also considered as a transformer because it's transforming your input into a kind of a different value, right? Basically, it takes the input and gives you a different result. Like here, we are giving an input in the form of English language, and we are getting in the French language. Let me speak in Hindi as well. Okay, so हम लोग क्या किए हैं, अभी अभी तक हम लोग मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा था, अभी थोड़ा हिंदी में जाऊंगा. ओके, सो एलएलएम कैसे काम करता है? ओके, एलएलएम बेसिकली एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट प्रेडिक्ट करता है, राइट? एलएलएम क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल. लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब ये है कि एक बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क है, लिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरल नेटवर्क है, जो कि ट्रेन हुआ है, हेवीली ट्रेन हुआ है एक प्रोप्राइटरी डेटा से, या फिर कोई प्री ट्रेन डेटा से, जो कि हम लोग वेब स्क्रैपिंग से कर सकते हैं, या फिर एक आई मीन या फिर डेटा बाय कर सकते हैं तो ट्रेन इट. एंड बहुत सारा स्टेप्स होता है एलएलएम बनाने के लिए. अगर जब बन जाता है सक्सेसफुली, तो हम कोई भी प्रॉम्प्ट पास कर सकते हैं. तो उसके दिमाग में बहुत सारा नॉलेज होता है, राइट? वो पर्टिकुलर इनपुट को प्रोसेस करता है और आपको एक डिजायर्ड आउटपुट देता है.
ओके, दैट्स व्हाट एलएलएम डज। सो बेसिकली जब मैं चैट जीपीटी से पूछा कि हाउ हाउ आर यू, चैट जीपीटी ये पर्टिकुलर इनपुट अंडरस्टैंड किया और हमको एक प्रिडिक्टिव रिजल्ट दे के आया। ओके, सिमिलरली जेमिनाई में भी हम लोग सेम प्रॉम्प्ट हम लोग यूज करेंगे और ये कुछ आउटपुट हमको दे रहा है। बेसिकली ये इनपुट ले रहा है और अपने प्री ट्रेन्ड डेटा में उसका वोकेबलरी चेक करता है, ये कीवर्ड सब वर्ड सब चेक करता है और हमको एक आउटपुट दे रहा है। ओके। और पहले एलएलएम से पहले हम लोग गूगल सर्च इंजन में कुछ टाइप करते थे, जैसे कि ये टाइप कर रहे थे और ये कीवर्ड्स को लेके जो भी वेबसाइट है उसका इंडेक्सिंग बनाता है, जो कि ये कीवर्ड को मैच करता है और हमको एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स वेबसाइट दे देता है। कौन दे देता है? गूगल का सर्च इंजन। सो ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा है, कोई हम आप इनपुट दे रहे हो और कुछ डिफरेंट आउटपुट नहीं आ रहा है, रिलेटेड आउटपुट नहीं आ रहा है। ये बेसिकली सर्च कर रहा है, इट्स ए सर्च इंजन। ओके। बट एलएलएम ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आप इनपुट दे रहे हो और वो इनपुट को लेके एक नया आउटपुट दे रहा है। ओके। देखो जैसे कीवर्ड को लेके ये फिल्टर करके इंडेक्सिंग करके न्यू आउटपुट दे रहा है, सॉरी न्यू आउटपुट नहीं, मतलब एक ग्रुप ऑफ वेबसाइट्स दे रहा है, राइट। ओके। नेक्स्ट है हमारा गूगल्स। ओके, गूगल्स ट्रांसफॉर्मर अटेंशन इज व्हाट यू नीड। इससे पहले बेसिकली गूगल ने जब आई थिंक जब एलएलएम पॉपुलर हुआ ना, इट वाज ऑन बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हाइट पेपर, मैं ओपन भी करके रखा हूँ। ये वाला, हाँ हाँ, ये है आपका पेपर, अटेंशन इज ऑल यू नीड, ये गूगल का पेपर है। उसमें ये लोग ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कशन किए थे और यही एक पेपर है जिसको फॉलो करके हमारा सब मॉडल बना है, स्पेशली दी गेमा मॉडल और जीपीटी मॉडल्स, दी जेमिनाई मॉडल्स, द एंथ्रोपिक मॉडल्स, क्लाउड, एंड देन देयर आर अदर लॉट ऑफ अदर मॉडल्स। ये सब ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को यूज करके ही बनाए हैं। ओके। बेसिकली ये आर्किटेक्चर यूज करके आप आपके मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। मॉडल बेसिकली ग्रुप ऑफ न्यूरल नेटवर्क है, दैट्स इट, राइट। हम लोग डिटेल में जाएंगे इसमें क्या है और कैसे वो ट्रांसफॉर्म करता है और कैसे अटेंशन, सेल्फ अटेंशन क्या है, एंड देन देयर इज दिस मल्टी हेड अटेंशन क्या है, लीनियर क्या है, सॉफ्टनेस क्या है, प्रेडिक्टेबल अटेंशन कैसे मिलता है और प्रेडिक्शन कैसा देता है, न्यू टोकेनाइजेशन, डी टोकेनाइजेशन भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो बट ये है हमारा गूगल का ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मर इंजन बेसिकली। ओके। ओके, सो ये हमको ये हम पढ़ेंगे। उसके पहले, पढ़ने से पहले हमको वेक्टर एम्बेडिंग समझना होगा। ओके। वेक्टर एम्बेडिंग बेसिकली क्या होता है? बेसिकली आप, मैं इधर लिखा हूँ, किधर गया, आई थिंक इधर नहीं है। ओके, मैं आपको मीरो में बता के बोल देता हूँ सो दैट आपको यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ओके, सो मेरे डैशबोर्ड में जाओगा। ओके। और देयर इज माय फाउंडेशन ऑफ जेन आई, राइट। ओके, ये वेक्टर एम्बेडिंग, हाँ। ओके, वेक्टर एम्बेडिंग। देखो ये हमारा हो गया, इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, जूम कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी का इंटरनल जीपीटी 3.5 और 3.5 टर्बो और 4 ले लो। ओके, जीपीटी 4 फॉर एग्जांपल। ओके, इस पे आप इनपुट दे रहे हो, हाय हाउ आर यू। ओके, तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, इनपुट आप दे रहे हो तो ये क्या करेगा, एक एक जो वर्ड है, हाय स्पेस हाउ स्पेस आर स्पेस यू, ये ईच स्पेस को कॉमा फुल स्टॉप जो भी आप दे रहे हो ना, ये सबको एक टोकन में कन्वर्ट कर रहा है। टोकन मतलब सिंपल नंबर है। ओके, क्यों कन्वर्ट कर रहा है? क्योंकि जो मॉडल है वो आपका नेचुरल लैंग्वेज सब बोलते हैं कि समझता है, एक्चुअली समझता नहीं है। एक्चुअली वो नंबर समझता है। मतलब आप कोई भी नेचुरल लैंग्वेज में कुछ भी इनपुट दे सकते हो, स्पीक के मतलब पढ़ बोल के या फिर लिख के या फिर इमेज के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से, जो भी आप अपलोड करते हो ना नेचुरल लैंग्वेज में, वो सबको नंबर में कन्वर्ट करता है, विच इज कॉल्ड टोकेनाइजेशन। टोकेनाइजेशन मतलब टोकन फॉर्म होने का, दैट इज कॉल्ड टोकेनाइजेशन, मीन्स एक नंबर फॉर्म होता है। सो हाई इज रिप्रेजेंटेड बाय 234, हाउ 435, R is represented by 567 and U is represented by 890। ओके, ये चार वर्ड का चार टोकन फॉर्मेशन हो गया। ओके, जब ये चार फॉर्मेशन टोकन फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है कि एक एक टोकन को एक वेक्टर एम्बेडिंग बनाना पड़ता है। वेक्टर एम्बेडिंग क्या है बेसिकली? वेक्टर्स मतलब क्या है? वेक्टर्स मतलब नोड से, पॉइंट से, कहाँ पे
टू डायमेंशनल स्पेस हो गया या फिर थ्री डायमेंशनल स्पेस में, जैसे हम लोग ग्राफ निकालते थे, राइट? लेट मी गो बैक हियर। ओके, जैसे कि हम लोग ये थ्री डायमेंशनल स्पेस है, राइट? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ओके, तो ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट्स है, राइट? ये एक एक पॉइंट्स को एक वेक्टर आप बोल सकते हो। ओके, एम्बेडिंग मतलब क्या है? एम्बेडिंग मतलब आप ग्रुप करके रखते हो। क्या ग्रुप करके रखते हो? नोड्स को या फिर वेक्टर्स को ग्रुप करके रखते हो। क्यों ग्रुप करके रखते हो? क्योंकि आप इधर लिखे हो, राइट? यू हैव रिटन हियर हाउ आर यू, इट्स अ सिंगल सेंटेंस, ये सिंगल सेंटेंस है, राइट? सो हाय का जो वेक्टर है, राइट, ये हाय का वेक्टर्स है। क्यों तीन है? चार हो सकता है, पांच हो सकता है, 10 हो रहा है, ये उसका एम्बेडिंग मॉडल पे डिपेंड करता है। अगर उसका 12 पॉइंट एम्बेडिंग मॉडल है, मतलब 12 वेक्टर्स और या फिर 12 पॉइंट्स रिप्रेजेंट वन पर्टिकुलर टोकन। ये टोकन 234 या फिर हाई वर्ड को अ, अभी तीन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब रिफर कर रहे हैं। तो ये क्या है बेसिकली? ये वैल्यूज जो है, ये वेरी करता है। ओके, मैं आपको अगर ओपन करके दिखाऊंगा, ये नहीं, ये हम बाद में जाएंगे। अगर मैं दिखाऊंगा इसका सॉल्यूशन है, क्यों हमारा या देखो, क्यू के वी। ओके, सो क्यू इज बेसिकली, वन सेकेंड। ओके, सो हमारा जो क्यू है, क्यू, हाँ, क्यू है क्वेरी। ओके, एंड के है की, एंड वी है वैल्यू। ओके, सो क्वेरी व्हाट एम आई लुकिंग फॉर। सो ये बेसिकली इधर भी लिखा है, आई जस्ट नोटेड इट डाउन। सो क्यू है बेसिकली क्यू के वी, दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज which represents each vector points, right? Q हो गया क्वेरी, की हो गया वैल्यू, एंड V है वैल्यू। ओके, बेसिकली सो क्वेरी इज व्हाट एम आई लुकिंग फॉर, की हो गया व्हाट इंफॉर्मेशन डू आई ऑफर, ओके, एंड वैल्यू हो गया द इंफॉर्मेशन आई प्रोवाइड। बेसिकली ये जो वेक्टर्स है ना, जैसे कि मैंने इधर लिखा है, हाय हाउ आर यू, हाय का वेक्टर ये है, हाउ का वेक्टर्स ये है, आर का वेक्टर्स ये है, और यू का वेक्टर्स ये है, राइट? और ये जो वेक्टर है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इन दी थ्री डायमेंशनल स्पेस। ओके, अबाउट हाई, सो हाई थ्री डायमेंशनल स्पेस में 0.25, 0.34, 0.56 पोजिशन जो भी हो गया एक्स वाई जेड एक्सिस में, जो पॉइंट आ गया वो पॉइंट को पॉइंट हाई रिप्रेजेंट करता है। ओके, सिमिलरली हाउ रिप्रेजेंट करता है, सिमिलरली आर रिप्रेजेंट करता है, सिमिलरली यू रिप्रेजेंट करता है। और देर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ अटेंशन इन द ट्रांसफॉर्मर मॉडल। उसमें क्या होता है कि ये जो वेक्टर्स है ना, वो आपस में बात करते हैं। बात करते हैं मतलब, जैसे कि हाउ हाउ आर यू। ओके, मे बी आप लिख रहे हो कि ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि सनत इज ह्यूमन, इट्स नाइस टू मीट यू। तो मैं लिख रहा हूँ सनत इज ह्यूमन, इट्स नाइस टू मीट यू। इसका मतलब ये है कि ये सम नाइस टू मीट यू सनत। ओके, तो सनत जो नाम है, वो इट जो प्रोनाउन है, इट रिफर्स टू सनत, राइट? कैसे ये रिफर कर रहा है? क्योंकि हम लोग जो इट का जो वेक्टर एम्बेडिंग है, ये रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है सिंटैक्टिकली, सिमेंटिकली विद सनत। सो एक नाउन एक प्रोनाउन से मतलब रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है बिकॉज ऑफ वेक्टर एम्बेडिंग्स। ओके, सो ये जो वेक्टर है हाय, ये यू वेक्टर जो है उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करता है। ओके, ये हो गया सेल्फ अटेंशन, मतलब आप इनपुट ले रहे हो और वो इनपुट में जो वेक्टर एम्बेडिंग्स है, इट्स काइंड ऑफ मेंटेन रिलेशनशिप, ओके, विथ ईच अदर। नहीं तो वो नेक्स्ट प्रेडिक्शन आउटपुट कैसे आएगा, राइट? जब मैंने लिखा है इधर सन्नत इज ह्यूमन, इट्स नाइस टू मीट यू, अगर ये बात नहीं करेंगे या फिर इसका जो ऑर्डर है, ये पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन, पैरेलली अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि सो मैन, मैन इट्स चिकन, चिकन इट्स मैन। ये दो लाइन में मीनिंग डिफरेंट है लेकिन सेम वर्ड आ रहा है, मतलब टोकेन तो सेम ही होगा, वेक्टर एम्बेडिंग सेम ही होगा, बट मीनिंग डिफरेंट आ रहा है, सिमेंटिकली मीनिंग डिफरेंट आ रहा है। कैसे आ रहा है?
कैसे ये ट्रांसफॉर्मर अंडरस्टैंड करेगा कि मैन ईट्स चिकन एंड चिकन ईट्स मैन, ये टू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड है और इसका मीनिंग डिफरेंट है, क्योंकि ये जो वर्ड्स है मैन ईट्स चिकन, इसमें जो टोकेन्स है या फिर जो वेक्टर एम्बेडिंग है अपने आप ही रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। तभी ये डिफरेंस समझ में आता है एलएलएम को। ओके। ओके, सो जैसे कि ये उल्फ डॉग और कैट ये एक ग्रुप हो गया है, राइट। और बनाना एंड एप्पल एक ग्रुप हो गया, क्योंकि ग्रुप ऑफ फ्रूट्स है, ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स है। अभी कैट ईट्स एप्पल अगर मैं लिखूंगा प्रॉम्प्ट, और तो व्हाट डज डॉग डू, ऐसा हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखूंगा तो क्या दिखेगा, डॉग ईट बनाना। क्योंकि कैट ईट्स एप्पल हो गया, मतलब कैट एप्पल खा रहा है, फ्रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब डॉग भी फ्रूट को रिप्रेजेंट करेगा। That is how this neural network is basically getting trained or has got trained based on the semantic relationship of the vector embedded. So ये एक वेक्टर जो है, ये वेक्टर जो है एप्पल के साथ एक सिमेंटिक रिलेशनशिप मेंटेन करता है। तभी आप जब सिमिलर कुछ पूछते हो डॉग के बारे में, तो वो बनाना को रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर डॉग चिकन को रिप्रेजेंट कर सकता है क्योंकि डॉग खा सकता है, या फिर डॉग हड्डी को रिफर भी कर सकता है, राइट। दैट द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स दैट इज मेंटेन्ड। ओके। नाउ दिस इज वेक्टर एम्बेडिंग। ओके। उसके बाद पोजिशनल एनकोडिंग्स क्या है? पोजिशनल एनकोडिंग मतलब करेक्ट पोजीशन ऑफ ए वेक्टर इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर पोजीशन अगर करेक्ट नहीं होगा ना, रिलेशनशिप इजीली मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आप वेक्टर एम्बेडिंग बना रहे हो, राइट, जो बन रहा है तो तीन वेक्टर जो आता है उसमें फोर्थ नंबर वेक्टर पोजीशन भी ऐड होता है। Okay, and how will you predict the position is because of through this these equations are there. So basically these equations are useful to kind of predict the position of a particular vector. मतलब इसका जो पोजीशन है, इस पर्टिकुलर वेक्टर का जो पोजीशन है वो डिटरमाइन होता है थ्रू द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर इक्वेशन। ओके। तो पोजीशन वेक्टर ऐड हो जाएगा, और पर्टिकुलर थ्री डायमेंशनल स्पेस में वो हाई या फिर हाउ या फिर आर या फिर यू मतलब रिप्रेजेंट हो सकता है, एंड दे मेंटेन रिलेशनशिप विद ईच अदर। ओके। नाउ जब आप लिखते हो हाई हाउ आर यू इनपुट, वो क्या करता है बेसिकली, इट प्रेडिक्ट्स द नेक्स्ट टोकन। नेक्स्ट टोकन मतलब नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता है, मे बी हेलो। ओके। उसके बाद ये भी टोकेनाइजेशन होगा, राइट, ये पर्टिकुलर वर्ड को भी 110 टोकन में कन्वर्ट होता है। ओके। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये पर्टिकुलर जो आउटपुट है ये इनपुट में ऐड होता है, मतलब ये पर्टिकुलर टोकन जो है ये इनपुट में ऐड होता है, और फिर से एलएलएम को क्वेरी जाता है। मतलब ये जो 110 अभी क्या है, हाउ हाय हाउ आर यू, और हेलो भी ऐड हो गया। ओके, अभी आई एम नया है। सो हेलो ये सब जो टोकन है, ये हाय हाउ आर यू हेलो, ये जो टोकन है फिर से इनपुट आता है एलएलएम को। सो एलएलएम प्रोड्यूस प्रोड्यूस करता है रिजल्ट हेलो आई एम। ओके। और आई और एम भी डिफरेंट डिफरेंट टोकन को रिप्रेजेंट करते हैं और कन्वर्ट होते हैं। ओके। उसके बाद ये भी ऐड हो जाता है, मतलब जब भी आउटपुट आता है आउटपुट फिर से ओरिजिनल इनपुट के साथ ऐड हो जाता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। सो ऐड होने के बाद फिर से एलएलएम को कोरी जाता है। उसका मतलब ये है कि एलएलएम एक पर्टिकुलर छोटा सा चीज करने के लिए बहुत सारा इटरेटिवली ऐसे कंप्यूटेशन करता है। जैसे कि हम लोग ने ऐसे टाइप किया ना, हाय हाउ आर यू, तो ये जो आउटपुट आया ये एक बार में आउटपुट नहीं आता है। पहले ये आउटपुट देगा, प्रिडिक्टेबल आउटपुट देगा आई एम फॉर एग्जाम्पल, फिर से वो आई एम हाय हाउ आर को ऐड होके फिर से एलएलएम को इनपुट होगा, तो एलएलएम में भी डूइंग ग्रेट आएगा। सो आई एम डूइंग ग्रेट फिर से ऐड होगा हाय हाउ आर यू। ओके। तो फिर से एलएलएम को इनपुट जाएगा, तो नेक्स्ट रिजल्ट में थैंक्स आएगा। ऐसे ही इतना सब वर्ड निकलने के लिए, आउटपुट निकलने के लिए बहुत बार एलएलएम को इनपुट प्लस द अटेंशन और इनपुट प्लस द आउटपुट प्रेडिक्टेबल आउटपुट ऐड होके इनपुट जाता है, तभी आपका फाइनल ये आता है। उसके में इसका मतलब ये है कि कितना मेमोरी कंजप्शन होगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर कंजप्शन होगा। इसीलिए कोई इट इज नॉट अ सीपीयू इंटेंसिव जॉब। सो एलएलएम का जो वर्किंग है ये सीपीयू इंटेंसिव एप्लीकेशन, मतलब सीपीयू काम नहीं कर सकता, क्योंकि सीपीयू के पास इतना कंप्यूटेशन पावर नहीं है, आपको जीपीयू चाहिए। ओके, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि गेमिंग के लिए चाहिए होता है, क्योंकि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट का कंप्यूटेशन पावर ज्यादा है और पैरेलली वो टास्क कर सकता है। मतलब सीपीयू जो है जनरली इट कैन हैंडल मल्टी थ्रेडिंग, बट जीपीयू इज बेटर देन दैट। ओके। सो इसलिए जीपीयू हम लोग को यूज करना पड़ेगा, राइट। ओके। सो इसमें और क्या पेंडिंग है?
सो ये बहुत सारा टाइम ऐसे मतलब इटरेशन होता है, और फाइनली यू गेट हाई हाउ आर यू, और आउटपुट हेलो आई एम गुड व्हाट अबाउट यू, ऐसा आता है। ओके। अभी व्हाट इज टिक टोकनाइजर? सो टिक टोकनाइजर एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप टोकन देख सकते हो, कौन सा डिफरेंट टाइप का टोकन आता है। देखो ये हमारा टोकन ऐड हुआ है। सो मे बी दिस इज सनत, दिस इज सनत। सी, जब मैंने देसी सनत ऐड करते क्या है ना, देसी सनत, ये दिस है, ये इफ इफ आई होवर ओवर दिस, यू सी 851 is getting highlighted, right? So this refers to 851, so 851 is the token for this। is का टोकन 382 है, तो 382 रिप्रेजेंट्स is। सो ऐसे ही एलएलएम ये पर्टिकुलर सेंटेंस को, जो भी है यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, दिस इज सनत, इसको कन्वर्ट करता है। बेसिकली ये है सिस्टम लेवल प्रॉम्प्ट। सो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट है, सिस्टम लेवल, यूजर लेवल, असिस्टेंट लेवल, कस्टम लेवल प्रॉम्प्ट है, ये डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट है। और ये मेरा यूजर जनरेटेड, ये मैंने प्रॉम्प्ट ऐड किया है। तो ये सबको टोकेनाइजेशन में, एक टोकन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद डी टोकेनाइजेशन भी होता है, मतलब जो आउटपुट आप देखते हो ना, जैसे कि आपने ये आउटपुट देखा, राइट? ये आउटपुट ऐसे नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश में नहीं आएगा, ये एक टोकन के फॉर्मेट में आएगा। वो टोकन टोकन फिर से वो इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड डी टोकनाइजेशन। सो टोकनाइजेशन, डी टोकनाइजेशन, ये रिपीट होता रहता है। ओके। सो जब आप डिफरेंट मॉडल यूज करते हैं, देखो ये GPT-4 में ये पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ टोकन आता है। अगर अगर मैं मॉडल चेंज कर दूंगा, मैं भी फॉर एग्जांपल लेमा यूज करूंगा, और लेमा में मैं टाइप करूंगा दिस इज सना, तो वैल्यू देखो चेंज हो जाता है, मतलब टोकन का वैल्यू चेंज हो जाता है। मतलब एलएलएम अगर चेंज होता है, जो मॉडल चेंज होता है, तो जो टोकन का फॉर्मेट है वो भी चेंज हो जाता है। ओके। सब मॉडल अपना अपना नंबर, प्रेडिक्टेबल नंबर और प्रेडिक्टेबल टोकन का मेथोडोलॉजी उन लोगों का सबका अलग है। ओके। उसके बाद ये हो गया हमारा वेक्टर। हाँ ये देखो, ये है 3 डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर है। अब इसको मैं थोड़ा जूम करूंगा, तो देखोगे तो 3 डायमेंशनल स्पेस में ये लीड्स है, ये डेस्ट्रॉयर, ये E0, ये हो गया मेल, ये हो गया लीड्स, ये सब वेक्टर्स है, जो कि जिसको कि पोजीशन दिया गया है थ्रू पोजिशनल एनकोडिंग, और वो 3 डायमेंशनल स्पेस में काइंड ऑफ इट इज देयर, और ग्रुप होके रहा है। सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर मैं कुछ इनपुट डालूंगा, तो बेस्ड ऑन दिस पोजिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर, ये हमको प्रिडिक्टिव रिजल्ट दे सकता है। ओके। अभी हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ चुके हैं, अभी हमारा टाइम है जीपीटी आर्किटेक्चर को समझना। ओके। तो बेसिकली आप इनपुट प्रॉम्प्ट देते हो, और इनपुट प्रॉम्प्ट वेक्टर एम्बेडिंग को कन्वर्ट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, ये वेक्टर एम्बेडिंग को कन्वर्ट होता है। ओके। उसके बाद ये है मल्टी हेड अटेंशन। ओके। तो सिंगल हेड अटेंशन, मैंने बोला सिंगल हेड अटेंशन मतलब जो भी आप प्रॉम्प्ट देते हो ना, वेक्टर जो एम्बेडिंग फॉर्मेट होता है टोकन से, टोकन से नहीं होता है बेसिकली। टोकेनाइजेशन एलएलएम अंडरस्टैंड करता है वेक्टर इज ए पोजीशन, राइट, इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, ग्रुप करने के लिए बेसिकली। सो बेसिकली वेक्टर एम्बेडिंग होता है, वेक्टर एम्बेडिंग काइंड ऑफ, आफ्टर वेक्टर एम्बेडिंग पोजीशन दे सकते हैं। पोजीशन जो देते हैं, उसके बाद जो सिंगल सिम, ये तो मल्टी हेड अटेंशन हो गया, मैं सिंगल हेड अटेंशन बोल रहा हूँ। सिंगल हेड अटेंशन में एवरी प्रॉम्प्ट इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू इच अदर, सिमेंटिक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, सो दैट नेक्स्ट आप जब इनपुट दोगे ना, उसको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने फिर से एक सनत इज ह्यूमन, इट्स नाइस टू मीट यू, तो इधर इसको समझ में आ गया कि ओके सनत के बारे में ये बात कर रहा है, और इट हैज इट्स ओन लर्निंग, सो इसका लर्निंग हो गया है। जब मैंने फिर से टाइप किया, उसको समझ में आ गया, और ये आपको प्रिडिक्टेबल रिजल्ट दे रहा है। ओके। सो ये हो गया सिंगल हेड। मल्टी हेड मतलब एक आप ट्रेनिंग कर रहे हो आपका प्रॉम्प्ट को ऑन द फॉर्म ऑफ लर्निंग, ऑन द फॉर्म ऑफ ग्रामर, ऑन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, ऑन द फॉर्म ऑफ, सो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में आप आपका इनपुट को काइंड ऑफ टेस्ट कर रहे हो, राइट, काइंड ऑफ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, राइट, सो दैट ये आपका सेंटेंस को अच्छे से समझ सकता है, और दूसरी बार जब आप इनपुट दे सकते हो, इसको समझ में आ गया ना, तो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। दिस इज कॉल्ड मल्टी हेड अटेंशन। एंड एड एंड नॉर्म मतलब ये बेसिकली, एड एंड नॉर्म इज नॉर्म, नॉर्म मतलब नॉर्मलाइजेशन बेसिकली। नॉर्मलाइजेशन मतलब जब जब रिलेशनशिप सब मेंटेन हो जाता है, ये जो न्यूरल नेटवर्क है ना, ये देखो फीड फॉरवर्ड है, एड एंड नॉर्मलाइजेशन बेसिकली, ये न्यूरल नेटवर्क है। वो जब
हमारा वेक्टर एम्बेडिंग हो गया और रिलेशनशिप मेंटेन हो गया, तो एक न्यूरल नेटवर्क में डेप्थ होता है, तो हिडन लेयर होता है, तो एक लेयर से दूसरा लेयर को जाता है, तो दूसरा लेयर में ट्रेन होता है, और बेटर ट्रेनिंग डेटा से ट्रेन होता है मतलब वो रिलेशनशिप और भी डिटेल्स मेंशन हो जाता है, और भी डिटेल रिलेशनशिप वो इसको मेमोरी में रखता है। जितना जितना ज्यादा लेयर होगा, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क का मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम। लेट मी गो टू द मेरो अगेन। इसमें था फाउंडेशन ऑफ जेन एआई मॉडल, राइट। सो इसमें मैं आपको न्यूरल नेटवर्क दिखाया, राइट। नो नो नॉट दिस। इसमें माय फर्स्ट बोर्ड, ओके। सो इसमें आपको मैंने दिखाया था, हाँ ये हो गया न्यूरल नेटवर्क, राइट। सो जब भी मैं इनपुट दे रहा हूँ वो नोड में वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट होता है। दिस रेफर्स ईच नोड और ईच वेक्टर एम्बेडिंग। उसके बाद जो हिडन लेयर है, एक एक लेयर में ट्रेनिंग होता है, मतलब एक लेयर यहाँ से यहाँ आने तक और यहाँ से यहाँ आने तक एक एक अलजेब्रिक इक्वेशन होता है। वो इक्वेशन को मतलब बेसिकली एक फंक्शन है, मान लो ए प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। यू गिव ए एंड बी, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये एक डेटा लिया इनपुट, और इसको आउटपुट में कन्वर्ट करके इसको ट्रांसफॉर्म करके नया आउटपुट आता है, राइट। सिमिलरली एक लेयर में एक अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, जो कि जो इनपुट होता है उसको ट्रांसफॉर्म करता है, अंडरस्टैंड करता है, उसका रिलेशनशिप सिमेंटिक रिलेशनशिप क्या है, ग्रुप करता है, ये सब होता है। जितना भी ज्यादा डेप्थ होगा ना, डेप्थ मतलब एक लेयर, अब ये 2 लेयर है, बेसिकली टोटल 4 लेयर, डेप्थ इज 4 हियर, ओके। विड्थ इज 4, विड्थ मतलब कितना नोड रहेगा। जितना ज्यादा विड्थ होगा उतना अच्छा इनपुट ले सकता है, जितना ज्यादा हिडन लेयर्स होगा उतना ज्यादा रिलेशनशिप अंडरस्टैंड कर सकता है, प्रेडिक्टेबल आउटपुट, बेटर आउटपुट आ सकता है, बेटर टोकन्स आ सकता है, ओके। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो हम लोग को आउटपुट टोकन आ गया, राइट। सो ये फिर से एक नया लेयर को न्यूरल नेटवर्क में एक नया लेयर को जाता है, तो एक एक लेयर में वो अंडरस्टैंड करता जाता है, सिमेंटिक रिलेशनशिप बिल्ड करता जाता है, बिकॉज मल्टी हेड अटेंशन है ना। तो एक एक पर्टिकुलर डोमेन में वो एक्सपर्ट बन के जाता है, राइट। उसके बाद ये जो आउटपुट जो टोकन है, मतलब जैसे कि मैंने बोला कि ये हाय हाउ आर यू, मतलब नेक्स्ट आउटपुट प्रोबेबल आउटपुट इज हेलो, राइट। वो हेलो जो है वो इनपुट को ऐड हो जाएगा, जो भी इनपुट ट्रेन हुआ है ना प्रॉपरली, वो हेलो को ऐड हो जाएगा। तो इसमें भी सेम ही है, इधर भी, इधर जो है इधर भी सेम ही है। ये फिर से ट्रेन होता है इन डिफरेंट न्यूरल, so basically there is एनकोडिंग पार्ट एंड डिकोडिंग पार्ट, दो चीज चलता है। सो सम कोई जीपीटी जनरली डिकोडर है, लेकिन पहला सब बर्ट है। पहला प्रीवियसली जो 3-4 साल पहले जो भी ट्रांसफॉर्मर मॉडल क्रिएट हुआ है, वो बेसिक गूगल का ये जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, बेसिकली उसमें एक एनकोडर होता है, एक डिकोडर होता है। लेकिन जीपीटी इज यूजिंग डिकोडर, बिकॉज वो नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करना है, उसका वही काम है, ओके। मैं बताऊंगा आपको डिटेल में व्हाट इज एनकोडिंग एंड व्हाट इज डिकोडिंग बेसिकली, ओके। उसके बाद ये लीनियर में आता है। लीनियर मतलब कि इट इज काइंड ऑफ गिविंग ए प्रोबेबल यू नो आउटपुट, ओके। प्रोबेबल आउटपुट का मतलब है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है बेसिकली ये जो अटेंशन कैलकुलेट हुआ है ना, एवरी वर्ड इज बीन गिवन ए अटेंशन। हाय हाउ आर यू, ओके। सनत इज ए ह्यूमन, इट्स वर्किंग एज ए ह्यूमन, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग टू सनत, मतलब इट वर्ड बहुत ही इंप्रूव हो गया, मतलब इट का अटेंशन ज्यादा है। तो अटेंशन कैसे कैलकुलेट करता है, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन अटेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। दिस इज मल्टी हेड अटेंशन, एंड मल्टी हेड अटेंशन ऐसे कैलकुलेट होता है, ये जो फॉर्मूला है, ओके। और ये हो गया हमारा पोजीशन वाइज, पोजीशन कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और एम्बेडिंग एंड सॉफ्टमैक्स जो होता है, ये जो रिजल्ट है, जो पोजिशनल एन्कोडिंग है, पोजिशनल एन्कोडिंग का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला है, ओके। एंड ट्रेनिंग डेटा जो है, जो को, कौन सा डेटा यूज करके ये लोग ट्रेन किए, ये सब डिटेल्स है, आप पढ़ सकते हो ये पूरा अच्छे से। हमको सब कुछ जाना नहीं है, बट यू कैन गिव ए ट्राई सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन वन गो, ओके। उसके बाद ये हो गया, तो लीनियर हमको प्रोबेबल आउटपुट देता है, और सॉफ्ट मैक्स होता है वो प्रोबेबल जो आउटपुट है वहां में से एक आउटपुट चूज करता है और आपको आउटपुट देता है, मतलब एक पर्टिकुलर आउटपुट निकालने के लिए कितना ट्रेन होता है, कितना न्यूरल नेटवर्क से गो थ्रू होता है, राइट। तभी आपको एक अच्छा आउटपुट निकल के आता है एलएलएम में, ओके। फाइन, आई थिंक
कुछ मैंने मिस किया है क्या? वेक्टर एम्बेडिंग, पोजिशन एनकोडिंग और न्यूरल नेटवर्क। हाँ, ये जो है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर से पहले जो हम लोग इनपुट दे रहे थे ना, वो एक एक वर्ड को सिक्वेंसली ऐसा ऐसा इनका मतलब एग्जीक्यूट करता था। क्या यूज करते थे हम लोग? आरएनएन यूज करते थे, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और एलएसटीएम यूज करते थे, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। उसमें प्रॉब्लम ये है कि एक एक वर्ड को काइंड ऑफ एनालाइज और प्रोसेस करेगा। मतलब इधर ना ट्रांसफॉर्मर जो है पूरा सेंटेंस को, मल्टीपल वर्ड्स को प्रोसेस कर सकता है। लेकिन आरएनएन है ना, जो वो एक एक वर्ड को ही प्रोसेस, पहले हाई प्रोसेस करेगा, उसके बाद हाउ प्रोसेस करेगा, उसके बाद मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस था। ओके, इसलिए ट्रांसफॉर्मर इज ए काइंड ऑफ ए सेंचुरी में एक डिस्कवरी होता है, राइट? वैसे ही एक आर्किटेक्चर ये है सेंचुरी के लिए, जो कि पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है हाउ एआई इज काइंड ऑफ बिल्ट एंड इट्स काइंड ऑफ रूलिंग फॉर द लास्ट 3-4 years. Okay. So I think that much is how LLM functions, vector embedding. So you please go through this video. I'll just stop sharing. प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो। ये वीडियो को फिर से देखिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड लेट मी नो कैसा लगा आपको। सो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वी विल गो टू कोडिंग एंड काइंड ऑफ लर्न लॉट ऑफ। सो बेसिकली बहुत सारा वीडियोस मुझे बनाना है, जिसमें कि आप मल्टीपल कोडिंग एजेंट में यूज करूंगा, वाइब कोडिंग यूज करूंगा। वाइब कोडिंग में आपको सिखाऊंगा अच्छे तरीके से कैसे वाइब कोडिंग करना चाहिए। और बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट जो है, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, 0.0 शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग एंड सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, ये सब प्रॉम्प्टिंग करके भी दिखाऊंगा। बहुत सारा वीडियो आने वाला है। ओके, थैंक यू वेरी मच।